Hi, my name is Kashmala Idris, and today we're going to talk about very contemporary subject, which is Zionism. People should know that what Zionism means. I really encounter many people on daily basis, and they even don't know that what is Zionist people and what are Zionism. I mean, इस वक्त हमारे करंट अफेयर्स वर्ल्ड वॉर जो भी मिडल ईस्ट में सिचुएशन है but they are really unaware of the core matter that why Israel and why those people are very much into the Palestine. So basically Zionism means the pursuit of having your own homeland, the quest for that कि हमें अपना एक homeland चाहिए. ये basically ये जो concept है, ये notion है, ये it comes from the Jews. ओके अब मतलब अब ये पूछा जा सकता है कि क्या सभी ज़ायनिस्ट जूज़ होते हैं या सभी जूज़ ज़ायनिस्ट होते हैं. तो द सिंपल आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी दैट ऑल ज़ायनिस्ट कुड बी जूज़ बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल जूज़ वुड बी ज़ायनिस्ट. आप समझ लेंगे इट इज़ लाइक देयर इज़ एन ओशन and the small part of ocean between that group is the Zionist people who believe that they should have their own homeland. Because if we talk about the orthodoxical Jews, जिसे हमारी ज़ुबान में मौलवी कहते हैं, वो नहीं समझते कि हमें हमारे पास हमारा घर होना चाहिए बिकॉज दे बिलीव कि वी आर द अबैंडन पीपल और हमें हमारे खुदा ने होली प्लेस से अबैंडन निकाल दिया था, एग्जाइल कर दिया था. तो आवर मसीहा विल कम और ही विल अलॉट अस द लैंड वेयर वी विल लिव. Other than that, we are going to live scattered all over the globe. Okay, so there are many kind of Jews. We can talk about Ethiopian Jews, that are the Africans. They are not the very dominant party in this Zionism lobby. They also don't believe, they are not the troublemakers. Then there comes Orthodox Jews that I've already told that they don't also want their own homeland. Then it comes the European Jews, which are also known as Ashkenazi Jews. They are basically the troublemakers. One thing you need to make yourself very clear about is कि ये जो Zionism है, this is a European problem. क्योंकि if we go about like 100 and 150 years ago, we can see that जो Jews हैं वो all over the world है, जैसे Roman Empire, Spain, England, यहाँ से exiled किए जा चुके थे. And when they were exiled, they had no place to go over. So they scattered all over the Europe and all over the places. And at that time, it's like 16th century, they took refuge in the Palestine as well. And at that time, Palestine was under the Ottoman Empire. So the Ottoman Empire and the Arabs welcomed them because they were homeless and stuff. So they gave them the place. So basically, the Zionism is a product of a European problem because they were exiled. And why they were exiled, that is some extra discussion or something, but I can just tell you what I have heard from different sources, that they were financially corrupt people. What I have heard is that they used to do the coin clipping, they used to do the financial fraud, and they don't do business with their own kind. और वो दूसरों के साथ, दूसरे रिलीजन और दूसरे लोगों के साथ ये फाइनेंशियली corruption को करते थे, and they were not of very good value, so they were exiled all over the world. This could be one of the reasons. Obviously that could not be the main reason, but yeah. And also we know that before the world war, the जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे बहुत सारे पोग्राम्स भी होते थे, एथनिक क्लिनजिंग होती थी जहाँ पे जूस को निकाल दिया जाता था, and that is why they took refuge in Palestine and all because of the Ottomans as well. But so at that time there are like 4 to 6% Jews in Palestine at the moment, but mainly they were Arabs living in the Palestine. They had their own rules, their own laws. They were living quite happily over there. After that, there's one thing that I need to mention that is a very base of Zionism. So in 1860 there was a man known Theodor Herzl. I hope I'm pronouncing it all right. So he was born in Hungary and he was a journalist. So one day what he was doing is that he was covering something in France, and he saw that how Jews were being killed, executed, and suddenly he developed the empathy for its own. उसको ये एहसास हुआ कि हमारे लोगों के साथ क्यों इस तरह होता है, क्यों इस तरह लोग मरते हैं, क्यों एग्जाइल किए जाते हैं. तो उसको एक हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ कि why don't we also have our own homeland? So in 1897,
उसने एक पम्फलेट पब्लिश किए जिसमें उसने फर्स्ट टाइम जूज़ होमलैंड के बारे में बात की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जूज़ होमलैंड क्यों? अगेन क्योंकि वो यूरोप में एग्जाइल किए जा चुके थे, वो बहुत ज़्यादा मारे जा चुके थे, तो इट वॉज़ लाइक वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। सेकेंड बात, क्योंकि एंटी सेमेटिज्म जो होता है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा था. who don't know the what anti-Semitism is like a hatred for Jews. Okay, so it's like people hated Jews. So इस वजह से भी they wanted a Jews homeland. अब बात आती है वाई पैलेस्टाइन, क्योंकि जो उस वक्त ऑटोमन थे वो वेलकमिंग थे उनके लिए, और फिर उसके बाद कुछ रिलीजियस टच भी था. एंड आई टेल यू मोर के वाई पैलेस्टाइन. सो इन 1897 उन्होंने बेजिल में एक कांग्रेस बिठाई स्विट्ज़रलैंड के अंदर. वहाँ पे उन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब किया कि हमें जो है वो इस तरह पैलेस्टाइन ही एज अ होमलैंड चाहिए. सो दे सेंड 2 rabbis. Rabbis are more like अगेन हमारे लैंग्वेज में मौलवी और एक ऑर्थोडॉक्स और एक वहाँ के जो मेन लोग होते हैं उनको भेजा पैलेस्टाइन देखने के लिए. एंड दे वेंट देयर एंड व्हेन दे कम बैक दे डेलिबरेटली सेड दैट द ब्राइड इज़ वेरी ब्यूटिफुल but is married to another man. That is exactly what they said. Okay, the place we are going to live here is very excellently good, but inhabitants are someone else. So before doing all of this, in 1904 Herzl died. So he couldn't get a chance to see any movement, any lobbying, anything accomplishing of Jews getting their own homeland. One thing that I would really like to appreciate over here is, even today, if you see the Netanyahu, they stick to their lobbying. They stick to their narrative. They don't drop their narrative. I mean, it's like more than 100 years of history. Anyone, any generation, any 10 years, any 20 years could have been, very essential to drop the narrative. But they didn't. They kept on working their, narrative that they need their own homeland. And unfortunately, they succeeded. Anyways, the World War I is finished. Okay, it's like 1917 to 1922's time. Ottoman Empire बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है क्योंकि they were not succeeded in the war. फिर यहाँ पे ब्रिटिश मैंडेट आ जाता है. ठीक है, ब्रिटिश मैंडेट इससे पहले अभी तक का रिकैप ये चल रहा था कि वो लोग एग्जाइल हो चुके थे. थियोडर ने एक अपनी रिजीम स्टार्ट की हुई थी. वो रिजीम एक तरफ चल रही थी, लेकिन इस तरफ ऑटोमन एम्पायर ने इनको वेलकम किया था. ये आहिस्ता आहिस्ता पैलेस्टाइन में होते थे, बट दे वर माइनॉरिटीज़. ठीक है, और बहुत 4 to 6% इनकी टोटल अमाउंट थी. दे वर नॉट मैनी पीपल. फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है एंड ऑटोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वहाँ पे ब्रिटिश मैंडेट आ जाता है और ब्रिटिश मैंडेट को पैलेस्टाइन का जो लैंड है वो अलॉट कर दिया जाता है. अब जब ब्रिटिश आती है और जूस भी कहते हैं कि हमने यहाँ पे आना है, तो वो क्या करते हैं कि वो एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन साइन करवाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि Jews would come into the Palestine, but they will make sure that inhabitants of the Palestine would not be disturbed, कि अरब्स तंग नहीं किए जाएंगे. इसी डिक्लेरेशन के थ्रू ये होता है कि 20 ईयर्स के अंदर 400,000 Jews जो हैं वो माइग्रेट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप टू पैलेस्टाइन, जिसकी वजह से पैलेस्टाइन में राइट्स शुरू हो जाते हैं. अरब्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उसकी डेमोग्राफिक्स चेंज होने लग जाती हैं, वो चीज़ें अर्बनाइज करने लग जाते हैं. और पहले तो सिर्फ होमलेस लोग माइग्रेट करते थे, लेकिन अब वहाँ पे प्रोफेशनल्स भी माइग्रेट करने लग गए हैं. डॉक्टर्स माइग्रेट कर रहे हैं, नर्सेज माइग्रेट कर रही हैं, टीचर्स माइग्रेट कर रहे हैं, वो अपनी लॉबी बना रहे हैं, वो अपने स्कूल जनरेट कर रहे हैं. तो इस वक्त अब जो पैलेस्टाइन है इट्स इज डिवाइडेड इंटू 3 forces: Jews, Arabs and somewhat British. Okay, so ये सब होता रहता है. तो in 1936 to 1939 जब ये टाइम आता है तो Arabs they got furious and they started a war against British. British retaliated so brutally that when the time came, 48 or almost, the British was about to leave the Palestine. There was no Arab leader left to fight for the Arabs. मतलब उन्होंने इस तरह से उनको डिमोलिश कर दिया था कि उनके पास कोई लीडर नहीं था जो उनको रिप्रेजेंट कर सके. बट ऑब्वियसली क्योंकि वो जगह ब्रिटिश के अंडर थी, वो अपनी उस चीज़ को नेगेटिव इमेज में छोड़ के नहीं जाना चाहते थे. तो ब्रिटिश मैंडेट ने एक पॉलिसी जनरेट कर दी कि इन द टेन्योर ऑफ 5 years देयर वुड ओनली बी 75,000 ऑफ जूज दैट वुड माइग्रेट टू
पैलेस्टाइन, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 75,000 ज्यूज़ 5 साल के अंदर माइग्रेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जो कि ज्यूज़ को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी, उन्होंने इस चीज़ पे फाइट स्टार्ट कर दी, ठीक है। और फाइट कर ही रहे थे कि इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। अब आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में एक हॉलोकॉस्ट हुआ था, जिसमें जर्मन्स ने ज्यूज़ का एथनिक क्लिनजिंग की थी। तो उधर जो और उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट इंग्लैंड भी था। तो व्हाट इंग्लैंड डिड, जो जायनिस्ट थे, जो ज्यूज़ में, जो पैलेस्टाइन में बैठे हुए थे, उन्होंने ना ब्रिटिश को प्लीज़ करने के लिए दे अलाउड कि हमारे जो लोग हैं वो आपके साथ जर्मन के अगेंस्ट फाइट करेंगे। दे जस्ट वांटेड टू डू टू प्लीज़ इंग्लिश पीपल, ओके। सो कि ताकि गोरे खुश हो जाए। एंड व्हेन द वॉर एंडेड, सो नाउ दे वांटेड कि अब हमें ज़्यादा अलाउ करेंगे। और ना पूरी वर्ल्ड में एक ऑरा जनरेट हो गया था कि ज्यूज़ बहुत ज़्यादा मर चुके हैं, तो जितने बच गए हैं दे डिज़र्व देयर ओन होमलैंड। उनको था कि हमारे पास ज़्यादा लोग आने लग जाएं। लेकिन ब्रिटिश इस बात से उनको, अब ब्रिटिश कंफ्यूज हो गए कि अब हम इस चीज़ के साथ क्या करें। सो इन 1945 ब्रिटिश रियली सक्कम्ड एंड दे असाइंड दिस केस टू द यूनाइटेड नेशंस। और तब यूनाइटेड नेशन नई जनरेट हुई थी। तो यूनाइटेड नेशंस ने जब फैसला किया, दे डिसाइडेड दैट देयर वुड बी अ पार्टीशन प्लान, देयर वुड बी 2 स्टेट नेशंस। So there would be 3 territories. So the 57% was given to Jews, and then the Palestinians, and then the international area that would include the Jerusalem and governors of United Nations. So basically it was like Jews, Palestine. अब the irony is, जो Jews उस टाइम पे पैलेस्टाइन पे थे, they were only 33%, and जो land उनको मिला that was 57%. That was a really very tragic thing to decide for the UN. और ये भी इसलिए हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो ज़ायनिज़्म की लॉबिंग है वो काम कर रही थी। अगेन जो उसी टॉपिक पे हम जाएं कि जो ज़ायनिज़्म की लॉबी है, दे आर वेरी स्ट्रांगली डिवोटेड टू देम। और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के फैसले को भी फैब्रिकेट कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है। तो ज्यूज़ वाज लाइक ऑल राइट, वी आर फाइन विद दैट, बट अरब्स रिटेलिएटेड। और ज्यूज़ को यहाँ पे मौका मिल गया कि ये देखो यार, अरब्स तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लिव विद अस, दे हैड द प्रॉब्लम। जबकि अरब्स वाज, हमने तो तुम्हें जगह देनी ही नहीं है, यहाँ तो हमारा लैंड है, हम तुम्हें 57 भी क्यों दें, हम तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इनकाउंटर ही नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को कंसंट्रेशन में लेकर ही नहीं आए, बट दे वर लाइक ये हमारे साथ रहना नहीं चाहते, तो अरब्स आर द प्रॉब्लम। सो दैट इज़ हाउ द क्लेवर नेशन दिस ज्यूज़ आर। So Arab ने reject कर दिया, and they were like, Jews don't even have that much population, why they are being given so much land? But again in 1948 जो Arabs हैं उन्होंने 2 states को reject कर दिया, and Jews ने फिर they started doing all of the propaganda, they started data gathering, they started to take the information on the different villages and stuff. So in the meantime उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया कि अरब्स हमारे साथ रहना नहीं चाहते, और उन्होंने इस बेस के ऊपर अरब्स को किल करना स्टार्ट कर दिया। उनके छोटे छोटे विलेजेस से लेकर उन्होंने बड़े बड़े विलेजेस तक उनको एथनिक क्लिनजिंग करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने 500 पैलेस्टाइन विलेजेस को अटैक किया इन 1947 टू 1948। उन्होंने पैलेस्टाइनियन वुमेन को रेप किया, उन्होंने इनकी इंस्ट्रिक्ट डिटेल और छोटी छोटी चीज़ें जमा इकट्ठा किया, उन्होंने इनकी किलिंग की। मतलब इस तरह नहीं था कि वो गए और उन्होंने मारा, उन्होंने लाइक ऑल प्लान्ड एंड दे स्टार्टेड टू किल। सो इन 1948 यूनाइटेड नेशंस ने उनको लैंड दिया था 57%, लेकिन उन्होंने अरब्स को मार के 78% लैंड अपने पास क्लेम कर लिया। और फिर 1948 में अनफॉर्चुनेटली वो पैलेस्टाइन से इजराइल बनता है, ठीक है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के डिसीजन को डिसोबे करके, उन्होंने मैसेकर करके अरब्स का, वुमेन का रेप करके ये स्टेट अपने पास ली थी।